next video of chapter similarity. And I know that first two questions of the first practice set we have already solved in the last video. In this video, we're going to solve the remaining three sums. But before we actually start solving those sums, let us quickly revise whatever we had studied in the first video. Okay. So let me reduce my face's size. Okay. So the first thing we studied was that ratio of areas of two triangles, यानी दो triangles का area ले लो और उसको divide कर दो. Okay, is equal यानी equal to sign to the ratio of यानी again एक division वाला sign रेशियो ऑफ किसका प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. प्रोडक्ट यानी दो मल्टीप्लीकेशन साइन आ गए. किसका प्रोडक्ट है? बेस का, और उस बेस से रिलेटेड उस बेस को जो परपेंडिकुलर है वो वाला हाइट. ओके, सो ऊपर बेस और हाइट फर्स्ट ट्रायंगल का होगा, नीचे जो बेस और हाइट है वो सेकंड ट्रायंगल का होगा. दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो. देन वी हैड सीन टू कंडीशंस, राइट. सो फर्स्ट कंडीशन क्या था? अगर दोनों के हाइट सेम होंगे, बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, देन the ratio of their areas will be equal to ratio of their bases. And उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा? If the bases of both the triangles are equal, then क्या होगा? Then the ratio of the areas of the triangle will be equal to ratio of the areas, ratio of heights. Okay, so अगर height equal है तो ratio base का हो जाएगा, अगर base equal है तो ratio height का आ जाएगा. किसका ratio? A ratio of area of triangles. Okay, so all of this we had seen in the last video. Now let us move on to the third question. Okay, first and second question we had solved in the last video. So we are going to see the third question now. So first, I would ask you to just take, say for example, I'll wait for 5 seconds, and in those 5 seconds I wanted to read the question and just see the diagram. Okay, what are you going to do? In the next 5 seconds I'm going to wait for you all pause the video here, read the question, and then see the diagram and just think about the solution. How will you try to solve this problem? Okay, okay, so I hope you all had the opportunity to go through the question. Okay, I've just explained you the question now, and now let us see how do you think about such a problem. Okay, so I've drawn the diagram over here. I've written the given also. PS is perpendicular to QR. So यहाँ पे इस साइन से पता चल जाता है PS is perpendicular to QR. Next QT is perpendicular to PR. So QT is perpendicular to PR. ये इस साइन से पता चल रहा है. फिर बाद में सारे वैल्यूज भी लिख दिया. RQ 6 है, PS 6 है, फिर बाद में RP is 12. और पूछा क्या है? QT. Okay, so give me a minute. So they've asked us this. Okay, QT is equal to what? Now think about this. तुम QT कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स में या तो ये किसी ट्राइंगल का बेस होना चाहिए या तो किसी ट्राइंगल का हाइट होना चाहिए. ओके, फिर ही हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. टॉपिक क्या चला? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. इसके फॉर्मूला में B1 इंटू H1 बेस इंटू हाइट आता है, राइट. सो बेस इंटू हाइट, या तो ये बेस होना चाहिए किसी ट्राइंगल का या तो किसी का तो हाइट होना चाहिए. तो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? सो आई कैन सी दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. Let me draw this particular triangle again. So this triangle is RPQ. Okay, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसको मैंने वापस नीचे बना दिया. अभी ये जो ट्राइंगल है RPQ, इसमें ये हाइट है. ओके, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस. ओके, इफ दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट. ओके, ये एक पेयर हो गया. बट मैंने तुम लोग को बोला था, राइट, कि कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है, कोई भी साइड बेस हो सकता है, बस हाइट उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट. सो हमें एक हाइट एक बेस मिल गया. दूसरा हाइट दूसरा बेस कौन सा लेंगे या फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? सो अभी दूसरी चीजें कौन सी दी? तुम्हें RQ दिया और PS दिया. इफ यू रियलाइज RQ क्या है? RQ यहाँ पे दिया, राइट. RQ they have given you here. So ये हो गया एक और बेस. एंड व्हाट इज PS? PS यहाँ पे आ रहा है, राइट. यहाँ इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं एंड यहाँ पे आ रहा है PS. इसको भी दे दिया. ये क्या है? ये भी हाइट है, राइट. सो दो पेयर्स ऑफ बेस एंड हाइट है. एक बार ये बेस बनेगा तो ये हाइट हो जाएगा, बिकॉज बेस एंड हाइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों के वैल्यूज भी दे दिए. एंड इन द सेकेंड केस इफ दिस इज योर बेस, तो ये तुम्हारा
हाइट बन जाएगा। अगेन बेस एंड हाइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो सेम ट्राइंगल में हमें दो पेयर मिल गए बेस और हाइट के। सो इफ आई जस्ट टेक द एरियाज ऑफ दीज टू, ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया मैंने। सेम ट्राइंगल के साथ भी मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, राइट। सो एक बार मैं रेड वाला बेस और हाइट लूंगा और एक बार मैं ब्लू वाला बेस और हाइट लूंगा। तो रेड वाले में क्या आएगा, बेस है आरपी, आरपी है मेरा 12 एंड हाइट है मेरा जो फाइंड आउट करना है QT, ओके। एंड दूसरे नीचे वाले में अभी ये ब्लू वाला बेस और हाइट लूंगा। सो ब्लू वाला बेस क्या है, आरक्यू, आरक्यू इज 6 एंड हाइट PS, PS इज ऑल्सो 6। और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये सेम एरिया, राइट, तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। सो ये 1 और नीचे भी 1 मिलेगा, तो 1/1 ये मुझे इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो अभी इसमें से मैं QT फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। द वे आई थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम वाज, मैंने पहले डायग्राम बना लिया, डायग्राम में सब मार्किंग्स कर दिया और मैंने देखा क्या पूछा है। द टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इसमें बेस होना चाहिए वो जो पूछा, या फिर हाइट होना चाहिए, या फिर एरिया हो सकता है, एरिया तो है नहीं, तो या तो ये बेस होना चाहिए या हाइट होना चाहिए किसी ट्राइंगल का। सो आई रियलाइज्ड कि एक हाइट है कौन सा ट्राइंगल का, PQR ट्राइंगल का। जब ये PQR ट्राइंगल का हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा, RP, जिसका हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है। देन मैंने चेक किया कि और क्या क्या दिया क्वेश्चन में। आई कैन सी RQ दे दिया और PS दे दिया। RQ और PS किसका बेस और हाइट हो सकता है, वो सेम ट्राइंगल का बेस और हाइट है। सो आई ड्रू द डायग्राम अगेन। एक हाइट और बेस तो हमें ऑलरेडी मिल गया था। देन वी रियलाइज्ड कि इसी का सेम अगर ये बेस ले लिया तो ये हाइट बन जाएगा और दोनों का वैल्यूज भी दे दिया है। सो मुझे हिंट क्या मिला, दैट आई शुड टेक द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सेम ट्राइंगल। बस ऊपर मैंने समझो रेड वाले ले लिए तो नीचे मैं ब्लू वाले ले लूंगा, ओके। सो दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ विल सी एक्चुअली हाउ डू वी राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप you all have understood how to solve the problem now. Solve कैसे करना है तुम लोग को पता चल गया। अब बस लिखना कैसे है ये देखने वाले हम लोग, ओके। सो द स्टेप नंबर 1 विल बी गिवन एंड इन्फरेंसेस फ्रॉम द डायग्राम। क्या क्या गिवन है, सो आई वुड यहाँ पे नहीं लिखा होगा आई थिंक। सो PS परपेंडिकुलर टू RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR, फिर RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR इक्वल टू 12, QT इज इक्वल टू व्हाट, ये सब तुम गिवन में लिख दो, ओके, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था। यहाँ पे नहीं लिखा है, फिर भी आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट, यू ऑल टू राइट गिवन, ओके, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था। एंड इन्फरेंसेस फ्रॉम द डायग्राम। व्हाट आर इन्फरेंसेस फ्रॉम द डायग्राम? डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, दैट इन ट्रायंगल PQR, PR इज बेस, QT इज हाइट। सो PQR, so P is here, PQR, so PQR ट्रायंगल में बेस इज QT, नहीं, PR इज द बेस, तो ये एक बार बेस हो गया। जब ये बेस हो जाएगा PR, तब हाइट क्या हो जाएगा, QT। तो ये हम लोग ने बोर्ड पे जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब हम लोग ने समझ लिया था, बट यू विल हैव टू राइट दैट इन द पेपर, बिकॉज जो करेक्ट करने वाला है उसको अभी तक पता नहीं कि तुमने वो कनेक्शन बनाया है कि नहीं, तुम लोग को वो समझा है कि नहीं, ओके। सो यू हैव टू राइट दैट इन योर पेपर। सेकेंडली, व्हाट इज द सेकेंड पेयर ऑफ हाइट्स एंड बेसिस? RQ इज द बेस, यहाँ पे RQ बेस हो गया। अगर RQ बेस है तो उसको परपेंडिकुलर क्या है, PS, सो PS इज द हाइट। सो ये भी यहाँ पे लिख दिया, ओके। सो इसको बोलते हैं इन्फरेंसेस फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम देख के हम लोग क्या क्या पता चला, ओके। Next, you use the formula. What's the formula? Formula is area of triangles of, sorry, ratio of area of two triangles is equal to ratio of products of their bases and corresponding heights. तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम लोग को लिखना पड़ेगा as the reason for this formula. Okay, you have to write the entire statement. इसलिए ये लोग ने देखो, if you see, they have divided the page into two parts. सारे main steps left side में और सारे reasons right side में. You all also do the same thing. Divide the page in two parts. सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेफ्ट में, सारे रीजनिंग राइट में, ओके। सो यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट। सो यू हैव रिटन द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है बस। सो अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों सेम है, सेम ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, तो 1/1 दोनों कैंसिल होके 1 बच जाएगा। सो यहाँ पे 1/1 आ गया। देन दे हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड 1 into RQ into PS, ओके। सो ये यहाँ पे जाएगा। सो RQ into PS इज इक्वल टू PR into QT आ जाएगा। सो ये लोग ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके। नेक्स्ट, नाउ सब्स्टिट्यूट। PR क्या है, 12, they have given in the question. QT you have to find. RQ and PS both are equal to 6. This also they have given in the question, okay. Then what will be QT? 6 6 are 36 यहाँ पे लिख दिया और 12 को यहाँ पे नीचे ले लिया। 12 जब राइट साइड में जाएगा then it will divide, because यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। So 12 ones are 12, 3s are, right? So QT you will get as 3. So your last step is final answer.
राइट द फाइनल आंसर एज QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ना सेंटीमीटर दिया, ना मीटर दिया, ना किलोमीटर दिया, यानी कोई यूनिट दिया ही नहीं है। सो तुम बोलोगे यूनिट्स, वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट राइट यूनिट्स, ओके, एंड बॉक्स द फाइनल आंसर विथ पेंसिल। यहाँ पे लोग ने डार्क डार्क लिखा है फाइनल आंसर, यू और तुम लोग डार्क नहीं लिख सकते, राइट? सो बॉक्स इट अप इन बॉक्स अप द फाइनल आंसर इन पेंसिल, ओके। So that's your question number 3. Next, question number 4. So in the adjoining figure, AP is perpendicular to BC. Okay, so let me see that AP यहाँ पे है and it is perpendicular to BC, यानी यहाँ पे है, okay. And AD is parallel to BC. ये दो लाइंस का मतलब क्या? पैरेलल। और ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर सिंबल, दिस इज पैरेलल सिंबल। सो AD पैरेलल टू BC, सो AD यहाँ पे है, it is parallel to BC, BC is यहाँ पे, okay. So AD parallel to BC. Then find area of triangle ABC. ABC कहाँ पे है? area of triangle ABC, okay. So ABC का तो हमें बेस और हाइट पता है, क्या है वो बेस और हाइट? बेस इज BC एंड हाइट इज AP, okay. इस टू, ये मैंने बोला था, राइट? ये साइन क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। सो बेसिकली डिविजन, इसको व्हाट दे आर trying to ask is area of triangle ABC divided by area of triangle BCD क्या है, okay. So what is area of triangle BCD? Where is triangle BCD? B यहाँ पे है, C यहाँ पे, D यहाँ पे, okay, BCD. So BCD का तुम लोग को बेस दिख रहा है क्या? बेस विल बी BC, राइट? BC को बेस ले सकते हैं, बट हाइट नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग हाइट नहीं ले सकते, तो हाइट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, isn't it? We know कि ये रेशियो ऑफ एरियाज निकालने के लिए हम लोग को बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। सो बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और हाइट दिख रहा है, ABC का यहाँ पे बेस है BC, हाइट है AP, बट BCD जो ट्रायंगल है उसका बेस दिख रहा है BC बट हाइट नहीं दिख रहा है, तो हाइट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योर फर्स्ट स्टेप हियर विल बी टू ड्रॉ द रफ डायग्राम। सो यहाँ पे देखो रफ डायग्राम ड्रॉ किया है एंड आई हैव ड्रॉन DQ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू BC। तो BC को थोड़ा आगे लेके गए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट? Always base and height should be perpendicular to each other. Keep that in mind, okay? So यहाँ पे इसका हाइट ड्रॉ कर दिया। नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सो क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग ने खुद से किया, राइट? क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में कि तुम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। सो राइट द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। क्या ड्रॉ किया हम लोग ने? DQ परपेंडिकुलर टू BC। जो नया पॉइंट है उसको Q नाम दे दिया। सो DQ परपेंडिकुलर टू BC लिख दिया, ओके। एंड BCQ, ये क्यों लिखा है? इसका मतलब है BCQ आर इन द सेम लाइन। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है एंड यहाँ पे Q, ये BCQ सेम लाइन में, तो बेस का जो लाइन है उसी पे हाइट आना चाहिए, राइट? इसलिए वो लिखा है। सो कंस्ट्रक्शन लिख के हो गया। अब गिवन लिख दो। गिवन में क्या है? AD इज पैरेलल टू BC, दिस वाज गिवन, राइट? सो AD इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। और अभी रफ डायग्राम ड्रॉ किया तो मुझे वहां पे देखना चाहिए AD इज पैरेलल टू BC, ये हो गया, ओके। सो दिस इज गिवन। नेक्स्ट, इन्फरेंसेस फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम में से क्या इन्फरेंस, यानी इन्फरेंस यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो तुम लोग डायग्राम में से। सो इस डायग्राम में से, रफ डायग्राम जो ड्रॉ किया उसमें से क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो तुम लोग? AP इज इक्वल टू DQ। AP कहाँ पे? यहाँ पे। AP इज इक्वल टू DQ बोल रहा है। क्यों होगा ये AP इज इक्वल टू DQ? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, राइट? और दो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। सो अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, तुम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करो या फिर यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करो, हमेशा सेम डिस्टेंस होगा। सो उस रीजन की वजह से, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, AP भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है, DQ भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है, दोनों इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या लिखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम, ओके। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ओके। और क्या पता है हम लोग को? हम लोग और क्या पता लगा सकते हैं डायग्राम में से? ट्रायंगल ABC एंड BCD हैव द सेम बेस, ओके। सो ट्रायंगल ABC देखो, इसका बेस है BC, और ट्रायंगल BCD देखो, BCD दोनों का सेम बेस है BC, ओके। सो अभी फॉर्मूला पता है हम लोग को, अगर जब सेम बेस होता है देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हाइट्स का रेशियो हो जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये क्यों फाइंड आउट करें? क्योंकि ये पूछा है, फाइंड आउट यही करने बोला है, ओके। दैट विल बी इक्वल टू AP अपॉन DQ। AP अपॉन DQ क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइट से, AP इसका हाइट है, DQ दूसरे ट्रायंगल का हाइट है, ओके। और अब नाउ डू यू अंडरस्टैंड AP इज इक्वल टू DQ क्यों बताता? क्योंकि अगर AP और DQ इक्वल हो गए तो ये RHS मुझे 1 मिल जाएगा, इसलिए हमने AP इक्वल टू DQ को इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ओके। तो स्टेप नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कर दो।
एपी सॉरी डी क्यू के जगह पे मैंने एपी लिख दिया। ओके, डी क्यू के जगह पे मैंने एपी लिख दिया। क्यों? फ्रॉम वन, कि वन में हमने लिखा है एपी इज इक्वल टू डी क्यू, तो एपी एपी कट होके आई विल गेट द फाइनल आंसर एज वन। ओके, सो देन राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के अलग से मार्क्स होते हैं, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है उसी तरीके से आंसर में लिखा है। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा है, 2 डॉट्स लिखे हैं, तो ये लोग ने फाइनल आंसर में भी 2 डॉट्स लिख के ही फाइनल आंसर एक्सप्रेस किया। यू ऑल शुड आल्सो डू द सेम। जैसे क्वेश्चन में पूछा आंसर, फाइनल आंसर वैसे के वैसे ही लिखना है। ओके, एंड देन बॉक्स अप द फाइनल आंसर। ओके, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे बस ये जो डायग्राम दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यहाँ पे अलग अलग रेशियोज पूछे हैं। सो फर्स्ट रेशियो क्या है? पी क्यू बी। सो इज पी क्यू बी, पी क्यू बी ये छोटा ट्रायंगल, पी क्यू बी लेफ्ट साइड का, और पी बी सी, पी बी सी ये बड़ा ट्रायंगल। सो पी क्यू बी ये जो छोटा ट्रायंगल है, और पीबीसी ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों का क्या सेम है? हाइट सेम है, पी क्यू, दोनों का हाइट पी क्यू है, राइट। सो उनका रेशियो क्या होगा? उनका बेसिस का उनके उनके ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? उनके बेसिस का एरिया, क्योंकि हाइट तो सेम है। सो फर्स्ट वन इज बी क्यू अपॉन बी सी। बी क्यू पहले वाले ट्रायंगल का बेस है, एंड बी सी बड़े वाले सेकेंड ट्रायंगल का बेस है। ओके, सो उनका रेशियो हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, दोनों का हाइट सेम है, विच इज पी क्यू। नेक्स्ट पीबीसी, पीबीसी तो ही वो जो सेकेंड ट्रायंगल था फर्स्ट वाले में, अब फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। ओके, पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी सबसे बड़ा ट्रायंगल है। ओके, सो एबीसी बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर ही पीबीसी है। सो दोनों का क्या सेम है? बेस कॉमन है, बीसी। बीसी पीबीसी का भी बेस है और एबीसी का भी बेस है, बीसी। ओके, सो बेस कॉमन हो गया, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। सो पीबी का क्या हाइट है? सॉरी, ट्रायंगल पीबीसी का क्या हाइट है? पीक्यू, और एबीसी का क्या हाइट है? एडी। सो पीक्यू अपॉन एडी होना चाहिए आंसर। So that's your answer number 2. PQ upon AD. It's the ratio of their heights, क्योंकि base same है. Reason, triangles having equal base. Okay. Next, तो ये तुम लोग को लिखना है, okay, कि ये दोनों triangles का same base है, and वो कौन सा base है, that you will have to write. Okay. So similarly, you all have to solve the next 2 sums. Okay. So next 2 sums I'm not solving for you all. Try to solve those sums by yourself. Okay. So that's it for this video, and in the next video we will start with the next practice set of this chapter, similarity. Okay, so that's it for this learning session. I hope to see you all, or I hope you all see me in the next video. Till then, peace.